enterprise, that is the employee, investors, suppliers, and the customers. Okay, great, fantastic. ठीक है, चलो लोग ज्वाइन करना चालू हो रहे हैं. ठीक है, और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप छवि? चलो 18 अभी तक हो गए हैं. हाँ, मैं आपके साइड से कोई लर्निंग आप शेयर करिए. You can repeat whatever other people have told, or you can tell your own learnings. Mahima, Mano, please participate. Prabhu. अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे आप लोगों से. जैसे यदि आप लोगों की क्लास सैटरडे को कराई जाए तो विल यू पीपल बी अटेंडिंग इट सैटरडे आफ्टरनून? 2-3 पीरियड एक साथ रख सकते हैं. हाउ अबाउट दैट? सूर्य? सर रख तो सकते हैं, बट क्या सैटरडे को कितने बजे? हाउ अबाउट 2 PM और 3? 2 PM 3 PM. हाँ सर, रख तो सकते हैं, बट मैं अकेले कुछ नहीं बोल सकता, बाकी लोग का मुझे नहीं पता. हाँ, नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि क्या होगा कि अभी क्या है, ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द टाइमिंग. और उसमें क्या 2-3 पीरियड हम एक साथ करेंगे तो इफेक्टिवनेस भी बहुत आई रहेगी. यस सर. और यदि हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर लें विजिबल लिटरेसी को, तो उससे क्या होगा कि आपको कैंपस में भी इससे हेल्प मिलेगी. और दूसरा चीज, एक सब्जेक्ट आपका कम हो जाएगा, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया. यस फिर सर. आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ना, राइट? यस. ठीक है, तो अभी 22 लोग हो गए हैं. फाइन, ग्रेट, फैंटास्टिक. ठीक है, तो अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, राइट ना? पीपीटी दिख रही है? सूर्य? यस सर, इट्स विजिबल. ओके, फाइन. ठीक है, सो we'll start. Let me see how many people have joined. There are 20 people till now. Okay, chalo, fine, let's start. Okay, so I welcome everybody to this wonderful session today, and I'm super excited to bring to you the great concepts of become a corporate superstar. Be the best, shine bright, and get ahead. So how many people would like to become corporate superstar? Please write yes in the chat box. And please be energetic, guys, because you should be having more energy than me, right? Okay, Aditya wants to become. Great, fantastic. Saksham, Chavi, yes, brilliant. Surya, yes. So only 4 people they want to become out of 24 people. How about other people? How many people they want to become corporate superstar? Or in other words, let me ask you, how many people they don't want to become a corporate superstar? They can write no. And how many people will not answer no matter what I ask? Okay, so anyway, the Pareto principle is getting applied here. Okay, so let's move forward. Yeah, so this is our 3D box. Become a corporate superstar, be the best, shine bright, and get ahead. Fine. Okay, so here actually I would like to give you a Google form link. So I'm just copy pasting this link in the chat box also. And yes, in the chat box I'm giving it. So please open this Google form and fill your name, scholar number, phone number, etc. And when this 3 information is written, the first 3 things, then you write D in the chat box.
So are you guys able to? Okay, Anuj is very fast. Okay, it means the form is openable. That is confirmed to me. Okay, Chev is also done. Brilliant. These are the fastest finger first. Saksham has also done it. Great. Great, guys. Fine. So now we will move forward. Okay, you people are able to see the prompt, right? On the screen. I will just copy paste this also. So you can just apply it on ChatGPT or Gemini, whatever you want to do. See, in this prompt, actually, you have to fill in the blank that my current salary expectation is, fill in the blank. For example, 10 lakh, 15 lakh, 50 lakh, 100 lakh per annum. I expect a percentage increase in salary every single year. For example, you can write 5%, 10%, 15%. And then you are giving it to the instruction to the ChatGPT. Please calculate my total lifetime earning, because you will people be working, I'm assuming 35 years. So let's assume that based on this instrument and show the total in both rupees and crores. So when you use this prompt, fill in the blank, and then when you have filled that particular column in the Google form, and when it is done, then write D1 in the chat box. D1, because earlier D was for writing those 3 columns. So Surya, is the instruction clear to you? Yes, sir. Okay, great. So anybody has any doubt on this simple instruction? Just open your ChatGPT, fill in the blank, execute the prompt, whatever answer you get, write in the Google form, in the before prompt. Yeah, and actually attendance will be marked by that Google form only. So please be participative. Even if you have any questions, you can ask me, no problem. Because this is the place where you are allowed to do mistakes. I want participations, whether correct or incorrect, that's okay. Because I am here to correct. So when it is done, then write D1 in the chat box, please. Anuj, have you done it? Okay, good, good, good. Brilliant. Okay, Surya has also done it. Saksham has also done it. Okay, Shobit has also done it. Brilliant. Yeah, and actually, let me tell you one bitter truth. The people, those who will be participating, they will be acquiring much more wealth. So please be participating. Please be involved. Okay, Shabi, Aditya, Vyom, brilliant guys. Aditya has also done it. So everybody please do it, because attendance will be based on this, your participation only. And it's a simple thing. Because when you enter the corporate, there will be much more complex tasks given to you. It's a very simple prompt. Right? You just have to execute the prompt, fill in the blank, that's it. Write the answer. Simple task, right? Very simple for a student of NIT Bhopal. That's true for the final year. Okay. So anyway, 700 people have done it. We'll move forward now. Right. Okay.
So now let's begin this fantastic session. So actually value is the axis on which entire business world revolves. तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली वैल्यू के अराउंड ही सारा बिजनेस वर्ल्ड घूम रहा है, और इस बात को बहुत ही कम लोगों को इतना क्लियरली पता है। बिकॉज वैल्यूज आपने जैसे देखा होगा कि इफ यू हैव द वैल्यू देन यू कैन गेट मनी, इफ यू हैव मनी देन यू कैन गेट वैल्यू, राइट? और वैल्यू से ही व्हेन वी जनरेट वैल्यू फॉर अदर पीपल देन ओनली वी आर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, might be for our own business or our employer's business, then only we are generating the profitability. Innovation भी हम इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सके, फास्टर, बेटर, चीपर, इजियर बना सके। एम्प्लॉयज भी वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने एम्प्लॉयर के कस्टमर के लिए। ऑपरेशंस का भी ऑब्जेक्टिव है वैल्यू क्रिएट करना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी वैल्यू क्रिएशन से ही होता है। प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव भी है वैल्यू प्रोवाइड करना, वैल्यू ट्रांसफर करना। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि वैल्यू को दिखाना कि हमारे पास ये वैल्यू है, यू कम टू अस, आई विल गिव यू दिस वैल्यू। जैसे कि एंटी एजिंग कंपनीज क्या बोलती हैं, यू कम टू अस, आई विल मेक यू लुक यंग, गिव मी मनी, आई विल मेक यू लुक यंग। या इंस्टीट्यूट्स क्या बोलते हैं, आईआईटीज बोलती हैं, यू कम टू अस, गिव मी द मनी। ऑफ कोर्स द क्वालिफाइड पीपल ओनली गो टू आईआईटीज एंड एनआईटीज एज वेल। You come to us, we will provide you the education, we will make you corporate ready, we will your career will be great with us. So actually I know that government institute, they don't have to do marketing, but yeah, private institute, they have to do it. So you know that value is the axis on which entire business world revolves. So if you agree with this, then write yes in the chat box. Okay, great guys. So we will move forward now. So now there are three definitions of value. First one we have seen in the earlier session, that is if we are reducing somebody's pain, then that is value. And if we are giving somebody pleasure, then that is also value. So this is the first definition. Definition one, adding pleasure. Okay, at this point of time I would like Mehma, can you read it for this me please, this definition? Or Rupali, Saksham, you can also read it. What is value? Adding pleasure to Yes. someone's life or reducing pain from someone's life or both. Okay, और इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? कोई भी एग्जांपल। और देखिए ये जो चीज है ये मतलब बहुत सारे लोग वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जबकि वैल्यू के एक अराउंड पूरा बिजनेस पर घूम रहा है। लेकिन आप देखोगे कि दुनिया में 10,000 में से केवल एक इंसान ही वैल्यू की डेफिनेशन बता पाएगा। एंड नाउ यू आर वन अमंग दोस 10,000 पीपल आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन। तो इसका कोई एग्जांपल बताना चाहेगा? पीपल कैन अनम्यूट एंड गिव द एग्जांपल फॉर दिस। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे कोई हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल का काम क्या रहता है, दे आर सपोज टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पर्सन, तो दैट इज वैल्यू क्रिएशन। या कोई एंटरटेनमेंट पार्क में जाता है, जैसे कि अपूगर हो गया या डिज्नीलैंड हो गया, या पुणे में ही मैजिका है, भोपाल में मुझे नहीं पता कि एंटरटेनमेंट पार्क है कि नहीं है। क्या भोपाल में एंटरटेनमेंट पार्क? गाइस प्लीज बी पार्टिसिपेटिव। फाइन, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। तो एंटरटेनमेंट पार्क क्या करता है कि प्लेजर प्रोवाइड करता है। इवन इफ यू गो टू इंडियन कॉफी हाउस, तो वहां पे आप डोसा खा के आपको प्लेजर मिलता है। इंडियन कॉफी हाउस तो खैर आप लोग जाते ही होंगे, मैनेट के लोग, एमएससीटी के लोग, एनआईटी के लोग, ये सब जाते ही वहां पे। मैं भी जाता था इनफैक्ट व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन एमएससीटी, दैट वाज माय फेवरेट प्लेस। फाइन, तो ठीक है, आपको ये वैल्यू का भी डेफिनेशन पता चल गया। ठीक है, नाउ मैस्लोज हायरार्की कितने लोगों ने पढ़ा है? कल मैंने बताया था प्री रिक्विजिट, तो कोई इसमें बताना चाहेगा? प्लीज भी पार्टिसिपेटिव। अनुज, आप बताना चाहेंगे?
Yes, Surya, would you like to tell it? Aditya. Sir, I was occupied with some of the things, so I forgot to study about it. हाँ, okay, चलो. So Okay, anyway, thanks for the participation. Anuj, या किसी को पहले से पता है तो भी बता सकते हैं ना, उसमें क्या है. मैथो हायरार्की तो बहुत फेमस चीज है. Sir, there are 5 aspects that are the self-actualization, esteem, love and belonging, safety needs, and psychological needs. Yeah, brilliant. Who is this? Sir, Chavi. Okay, great, Chavi. Brilliant, fantastic. हाँ तो देखिए, हाँ अरुण ने बोला 5 tier of needs. तो देखिए, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या बोलता है कि हर इंसान की नीड्स होती है, वो इस हायरार्की में रहते हैं. जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड रहती है. सबसे पहले इंसान को खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये उसको चाहिए. फिर ये मिलने के बाद ही उसको फिर सेफ्टी की नीड पैदा हो जाएगी. फिर ये यदि नीड्स फुलफिल हुई, उसके बाद फिर उसकी लव एंड बिलोंगिंग की नीड की तरफ देखेगा. क्योंकि यदि इंसान भूखा है तो वो लव एंड बिलोंगिंग के लिए तरफ देखेगा भी नहीं. इवन वो अपनी फ्रेंड से भी लड़ाई कर सकता है. यदि कोई 3 दिन से 4 दिन से भूखा है और केवल एक मसाला डोसा है और 5 फ्रेंड्स हैं, तो वो लव एंड बिलोंगिंग देखेंगे कि वो पहले अपना भूख मिटाएंगे. छवि. सर, पहले खुद खाएंगे. सॉरी, आई मिस दैट. सर, पहले पहले खुद खाएंगे. हाँ राइट. तो पहले वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई करेंगे ना. फिर लव एंड बिलोंगिंग तो दोस्ती यारी बाद में आएगी. ठीक है. और उसके बाद ये भी इंसान की क्या रहती है, अबाउट सेल्फ एस्टीम. एस्टीम नीड रहती, मतलब रिस्पेक्ट चाहिए उसको. पहले तो ये सारी उसको नीड चाहिए. हर इंसान को पहले उसको खाना चाहिए, उसके बाद सेफ्टी चाहिए, लव एंड बिलोंगिंग चाहिए. वो भी यदि उसका फुलफिल होगी तो उसके ऊपर रेस्पेक्ट चाहिए, प्राउड चाहिए. उसको आईएएस बनना है, उसको एक महान इंजीनियर बनना है. एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है एवरीथिंग विच यू आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग. तो ये सब भी फुलफिल हो गई तो सब लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं. जैसे कि काफी लोग माउंट एवरेस्ट जाते हैं, चढ़ते हैं उस पर. तो उसका एक्चुअली रीजन यही रहता है कि उनकी बाकी नीड सेटिस्फाइड है एंड दे उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है. दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ कि हम ये महान काम कर सकते हैं. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हाँ तो देखो, यहाँ पे एक्चुअली की पॉइंट क्या है कि वैल्यू क्या चीज है कि इसमें से यदि आप किसी भी इंसान की कोई भी नीड यदि आप सेटिस्फाई करते हैं, जैसे आपने उसकी खाने की नीड सेटिस्फाई कर दी, या उसको बिस्लरी वाटर दे दिया, या इवन आपने स्प्रिंग वाटर प्रोवाइड किया. जैसे विराट कोहली जो पानी पीता है वो 800 रुपीज पर लीटर का आता है, तो आपने विराट कोहली को वो प्रोवाइड किया, तो आपने वैल्यू क्रिएट की उसके लिए. या किसी को आपने लव एंड बिलोंगिंग, जैसे ग्रीटिंग कार्ड आपने क्रिएट किया, लोगों ने उसका यूज किया टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. आपने किसी की एस्टीम बढ़ाई, उसको कोई डिग्री दे दी, उसको कोई सर्टिफिकेट दे दिया, या आपने किसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने में हेल्प की. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने पे आपने उसको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, या शेल्पर लोगों ने गाइड किया. जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के. तो दैट इज यू आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर दैट पर्सन. दिस इज द सेकंड डेफिनेशन. ठीक है. तो इसमें कोई क्वेश्चन? इज इट क्लियर? अनुज, आदित्य, सक्षम, Yes, sir. सौकीर. ओके, ग्रेट, फाइन. हाँ तो देखिए, अभी ये सेकंड डेफिनेशन हो गई वैल्यू की. तो लोगों को तो एक ही डेफिनेशन नहीं पता, आप लोग को आज 3 डेफिनेशन पता चल रही है. ठीक है. और देखिए, नाउ द थर्ड डेफिनेशन. यस, तो अभी सक्षम आप प्लीज इसको रीड करिए. या और एनीबॉडी कैन रीड इट. Value is an attribute of a product or a service that satisfies one or multiple needs of Anthony Robbins' 6 human needs. ओके, ग्रेट, थैंक यू. हाँ तो देखिए, एंथोनी रॉबिन्स की यदि आप लोगों ने नीड पढ़ी है या पढ़ी भी होंगी तो उसके हिसाब से इंसान की मैस्लो के हिसाब से उन्होंने 5 ह्यूमन नीड बताई थी, एंथोनी रॉबिन्स ने 6 बताई. और ये हर इंसान में होती है. आप लोगों के अंदर भी शर्तियां हैं, क्योंकि आप लोग भी इंसान हो. देखो, आप लोग को सर्टेनिटी चाहिए कि हमें डिग्री मिल जाएगी, या जैसे लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं सर्टेनिटी के लिए. यदि जैसे कोई बीमार होता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस
हम क्यों कराते हैं कि यदि हम बीमार हुए तो हमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर, क्योंकि यदि बीमारी में 15 लाख भी लग सकते, 20 लाख भी लग सकते हैं, कभी कभी तो 50 लाख भी लग जाते हैं। तो हम हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं ताकि फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारे पास ना आए। फिर लोगों की एक और नीड होती है अनसर्टेनिटी की, उनको एडवेंचर करना है, जैसे स्कूबा डाइविंग करना है उनको, या माउंट पहाड़ पे से कूद जाना है, या उनको बोट रिवर ड्राफ्टिंग करना है, या उनको मूवी देखना है। तो उस मूवी में क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है ना। या लोग क्रिकेट मैच क्यों देखते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी की भी नीड है। फिर हर इंसान की सिग्निफिकेंस की भी नीड है, उसको प्राउड चाहिए, वो उसको इंपॉर्टेंट बनना है। लोग क्यों जैगुआर गाड़ी लेते हैं, क्यों रोल्स रॉयस लेते हैं, बिकॉज वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं वी आर सिग्निफिकेंट। माँ बाप भी बच्चों को बोलते हैं बेटा इंजीनियर बनो, सीए बनो, डॉक्टर बनो। फिर आजकल वो, हाँ मतलब अभी वैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग बोलते हैं कि अपना जो भी पैशन है वो फॉलो करो, लेकिन कुछ अच्छा अपनी फील्ड में अच्छा ग्रेट काम करो। क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंस उनको मिलता है, हमारा बेटा या हमारी बेटी ये है वो है, दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंस। फिर लव एंड कनेक्शन, ये तो घर मैस्लो में भी है, कॉमन है। नाउ एवरीबडी हैज अ नीड फॉर ग्रोथ आल्सो, तो इसीलिए आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में है ना, क्योंकि आपकी ग्रोथ की नीड आप लोग फुलफिल कर रहे हो। फिर कंट्रीब्यूशन, हर इंसान कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है, और कॉर्पोरेट में हमें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है, तभी हमें फिर ग्रोथ मिलती है उससे। तो ये मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया, डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर हैविंग लेस टाइम एंड टू मेनी थिंग्स टू कवर। ठीक है, लेकिन आपको आइडिया मिल गया, राइट? हाँ तो राइट, अभी नहीं देखिए, वैल्यू क्रिएशन इज रिप्रेजेंट एज डायमंड शेप्ड एप्पल। नाउ वैल्यू क्रिएशन इक्वल टू व्हाट, ये हमने पहले डिस्कस किया है। वैल्यू क्रिएशन इक्वल टू व्हाट? Wealth creation. ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। तो देखिए, दिस इज वैल्यू क्रिएशन इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन, एंड दिस इज द एनलाइटनिंग पिक्चर, वेरी सिंपल पिक्चर, वेरी एनलाइटनिंग। और ये भी 10,000 में से हम लोगों को इतना क्लियर पता रहता है। तो आप मुझे ऐसा इंसान बताइए जो कि बहुत वेल्दी है, पर उसने मतलब जो इथिकली वेल्दी बना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दाऊद एंड ऑल, जो इथिकली वेल्दी बना है और जिसने मैसिव वैल्यू नहीं क्रिएट किया, ऐसा एक भी इंसान आप नहीं बता पाओगे। यदि बता सकते तो आप बताओ मुझे। तो फिर वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी ज्यादा वेल्थ चाहिए उतना ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? यस, अमर, यस, यस, आई जस्ट टोल्ड इट, राइट। हाँ, जितना ज्यादा आपको वेल्थ चाहिए उतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करो, सिंपल फंडा। अब लेकिन ये वैल्यू क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, ये भी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। वैल्यू क्रिएशन का फॉर्मूला आप नेट पे सर्च कर लो, चैट जीपीटी से भी पूछ लो, नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली वो मैंने आफ्टर 10 ईयर मतलब काफी रिसर्च करने के बाद फिर मैंने इस बुक में वो किया है फॉर्मूला। एक मिनट, ये एक्चुअली हाँ अभी आया क्लियर, द नाइन्थ हैबिट। तो इस बुक में मैंने उसको अनवील किया है दैट फॉर्मूला, और वो दुनिया के किसी भी बुक में नहीं है। इवन आईटीज वाले तो उनको तो पता भी नहीं है सब, राइट? बट यू विल एग्री कि वो फॉर्मूला सही है। लेट मी अनवील टू यू दैट फॉर्मूला। हाँ तो देखिए, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट द फॉर्मूला फॉर value creation, and that is also called as wealth creation in very simple terms? If yes, then write in the chat box please, because आपकी हायर एनर्जी के बिना वो फॉर्मूला सामने नहीं आएगा। ओके ग्रेट, अमरेश is telling is okay, great, fantastic, right guys? So here is the enlightening formula and this is the eternal formula. ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, जैसे एआई कितना फास्ट चेंज हो रहा है, बट ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो देखिए, इसमें एक्चुअली 5 एलिमेंट्स हैं। तो Shavi, can you please read all these 5 elements for me please? Attitude, effort, value created, risk taken, and skill set. Okay, thank you Shavi. ठीक है, फाइन। अभी नाउ वी विल पिक अप these elements one by one and let me go into little detail. हाँ तो देखिए, सबसे पहले हमारा एलिमेंट होता है स्किल सेट।
हाँ, अभी कोई बताना चाहेगी कि स्किल और नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? What is the difference between skill and knowledge? Sir, basically, knowledge means what you know, and skill means what can you do, something like that. Okay, okay. Yes, you are very close. और अनुज ने भी सही बताया. When you can apply the knowledge, it becomes a skill. Okay. Thank you guys for the participation. हाँ तो देखिए, हाँ तो जैसे उन्होंने सही बताया कि knowledge is about knowing the fundamentals, the principles, the concepts, the laws. उसे कहते हैं knowledge. जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हमें कार ड्राइविंग सीखना है तो ये गियर होता है, ये एक्सीलेटर होता है, ये ब्रेक होता है, ये क्लच होता है, ये उसका स्क्रीन होता है, ये विंडशील्ड होती है, और ये हमारे रियर व्यू मिरर होते हैं, ट्रंक होता है. तो वो नॉलेज हो गया. फिर जब हम उसको ड्राइव करते हैं तो देन वी आर लर्निंग दैट स्किल. हाँ, और एक्चुअली देखिए इसमें आपको मैं क्लियर कट डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, एंड दैट इज विदाउट नॉलेज स्किल इज ब्लाइंड, एंड विदाउट स्किल knowledge is useless. So how is this definition, guys? Okay, Aditya telling it's perfect. Okay, Ani is also telling yes. Okay, great guys. Fine. तो चलो मैं इसको एक शॉर्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको. आज से करीब 15-20 साल पहले मैं स्विमिंग सीख रहा था एक्चुअली. तो वहां पे एक लाइफ गार्ड टाइप का ही बंदा था. उसने क्या बोला कि पहले आप बोर्ड से आप ऐसे बोर्ड पकड़ो और अपने पैर ऐसे ऐसे चलाओ. तो उस तरीके से मैंने स्विमिंग सीखी. वो कोई एक्सपर्ट ट्रेनर नहीं था, वो केवल जान बचाने का काम था उसका बस. तो वहां पे मैं क्या करता था कि बहुत तेजी से हाथ पर चलाता था. अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा हूँ ना पूरे, बिकॉज आई वांट टू शो माय बॉडी लैंग्वेज आल्सो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. एम आई विजिबल ऑन द स्क्रीन? माय बॉडी लैंग्वेज इज कमिंग? ओके, थैंक्स अनुज फॉर द कंफर्मेशन. हाँ तो मैं देखिए पैर चला रहा था और हाथ ऐसे ऐसे तेजी से चला रहा था. तो आई वॉज एबल टू सेव माई सेल्फ. और मैं क्या हो रहा था कि उससे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में भी एग्जॉस्ट हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा था. टाइम ट्रेवल नहीं कर रहा था, हालांकि अपने आप को मैं सेव कर सकता था. इतनी स्किल मैंने अपने आप डेवलप कर ली थी. फिर 4-5 साल मैंने ऐसे किया. फिर मुझे एक एक्सपर्ट ट्रेनर मिला, और उसने क्या बोला कि आप ये जो है आप बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप हाथों को ऐसे चप्पू की तरह चलाइए. तो उससे क्या होगा कि कम एनर्जी में आप ज्यादा ट्रेवल करोगे, आप थकोगे भी नहीं. तो उसने मुझे नॉलेज दिया, तो उससे मेरी स्किल स्विमिंग की बढ़ गई. तो यस, एक्चुअली नॉलेज इज अबाउट, वो नॉलेज था कि मुझे हाथों को ऐसे से चलाना चाहिए, या मैं ऐसे से पैर करने से फ्लोट कर सकता हूँ. दैट इज नॉलेज. और जब मैंने उसको यूज किया, स्विमिंग पूल में कूदा और उसको यूज किया, तो मेरी स्किल बनी. फिर बाद में और नॉलेज आया जब उसने बताया कि आप हाथों को चप्पू की तरह चलाइए. तो फिर मैं कम टाइम में ज्यादा ट्रेवल करने लगा और एनर्जी भी मेरी वेस्ट नहीं हो रही थी. तो नॉलेज, सही नॉलेज मिला तो मेरी स्किल और बढ़ गई उससे. So yes, somebody has said it rightly. Knowledge is about knowing and skill is about implementing. But this fact is also very enlightening that without knowledge, skill is blind, and without skill, knowledge is useless. यदि आपने कोई नॉलेज एक्वायर किया और उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो यूजलेस नॉलेज है. और इसलिए यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूँ जो आपकी लाइफ में हमेशा काम में आएगा. सिलेबस के हिसाब से तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन हालांकि मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस आई एम कवरिंग, आई एम श्योर अबाउट इट, अराउंड 80%. बट द ऑब्जेक्टिव इज जो प्रैक्टिकली आपके लिए यूजफुल है, वो मेरा ज्यादा उस पर एम्फेसिस रहेगा. फाइन. हाँ तो देखिए स्किल सेट. अभी कोई स्किल सेट के एग्जांपल्स बताइए. किस किस टाइप की स्किल्स होती हैं और किस किस टाइप के स्किल सेट हो सकते हैं? प्लीज टेल द एग्जांपल्स. अनम्यूट करिए प्लीज गाइस, बी पार्टिसिपेटिव. हाँ, जो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा वो अपनी लाइफ में उतना वेल्दी बनेगा, ये भी श्योर है. सो प्लीज बी पार्टिसिपेटिव.
Okay, content creation is a skill. Okay, Amarisha has told it rightly. Okay, cognitive skills, right? Saksham is also correct. अच्छा, कौन सी कौन से टाइप की स्किल्स होती हैं वैसे? ठीक है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, ग्रेट. इंटरपर्सनल स्किल्स, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक गाइस. चलो वी विल मूव फॉरवर्ड. हाँ, तो ये स्किल सेट का एग्जाम्पल है. और हमारे पास देखिए, हमारे पास जितनी स्किल सेट रहेगा उतना अच्छा है. और ये तो 3 टाइप की स्किल्स हमने डिस्कस की हैं: सॉफ्ट स्किल्स, बिजनेस लिटरेसी एंड डोमेन नॉलेज, जिसको हार्ड स्किल भी हम बोल सकते हैं या टेक्निकल स्किल्स आप लोगों के लिए बोल सकते हैं, बिकॉज यू पीपल आर इंजीनियरिंग, you are studying engineering, you will be engineering next year, you will be engineers next year. तो राइट, आपके केस में इंजीनियरिंग इज द हार्ड स्किल. हाँ, तो आप जितना ज्यादा स्किल सेट एक्वायर करेंगे उतना ज्यादा आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. एंड स्किल्स के इंपॉर्टेंस को हम ओवर एम्फेसाइज कर ही नहीं सकते, बिकॉज स्किल इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर वैल्यू क्रिएशन. इसको आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए. स्किल इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर वैल्यू क्रिएशन. चलो, जब तक मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई कैब हायर की या आपने कोई ऑटो रिक्शा हायर किया, तो उसको ड्राइविंग की स्किल है ना, तभी तो वो आपका ट्रेवलिंग का जो टाइम है उसको फास्टर बना रहा है और उसको इजियर बना रहा है. यस, सो अनुज इज वेरी पार्टिसिपेटिव, ही इज ऑलवेज द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. ओके, ग्रेट. सचिम ने भी सही लिखा. आदित्य, अमरियश, ग्रेट गाइस. और देखो, इतने क्लियर कॉन्सेप्ट्स, इतने सिंपल तरीके से कोई भी आपको नहीं बताएगा, राइट? आई कैन से इट. ओके, तो स्किल सेट हमने देखा अभी. तो आपका देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप स्किल्स अपनी बढ़ाते रहें, क्योंकि जितने ज्यादा आप स्किल्स बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे तो यू नो इट व्हाट यू विल गेट इट, बिकॉज वैल्यू क्रिएशन इक्वल टू, यू नो द आंसर. राइट, वी विल मूव फॉरवर्ड. हाँ, अभी द नेक्स्ट एलिमेंट इज एक्सपर्टाइज लेवल. देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली स्किल तो हर किसी के पास हर चीज की हो सकती है. जैसे मेरे पास क्रिकेटिंग की भी स्किल्स है, मेरे पास चेस खेलने की भी स्किल है, बास्केटबॉल की भी स्किल है, मैं खेल सकता हूँ. लेकिन सबकी एक्सपर्टीज लेवल भी अलग अलग होता है. मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन मेरी पुअर क्रिकेटिंग स्किल्स है. चेस में मेरी एक्सीलेंट है, आई एम नॉट आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग होता तो मैं ग्रैंड मास्टर होता, पर मेरी एक्सीलेंट है क्योंकि मैं 2000 रेटिंग वाले प्लेयर को बीट कर सकता हूँ इन चेस. इनफैक्ट, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आई वाज एमएससीटी चेस चैंपियन इन माय कॉलेज डेज. यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं खेल गया था. तो आई मीन जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द एक्सपर्टाइज लेवल. तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्किल तो रहती है, उसका एक्सपर्टाइज लेवल अलग अलग रहता है. फॉर एग्जांपल, I am having cooking skills also, and I can cook anything. I can cook Italian, I can cook Mediterranean, I can cook Chinese, Spanish, anything I can cook. But people cannot eat whatever I can cook, right? तो स्किल लोगों के पास रह सकती है, बट उसमें एक्सपर्टीज लेवल भी मायने रखता है. और जितना ज्यादा एक्सपर्टीज लेवल आपके पास रहेगा उतनी ज्यादा वैल्यू आप क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई सिटी में कार ड्राइव कर लेता है, जैसे मैं कर लेता हूँ, तो ठीक है, मेरी एक एक्सेप्टेबल ड्राइविंग स्किल्स है, आई कैन ड्राइव सेफली, जो कि मुझे चाहिए. मुझे कोई फॉर्मूला 1 में जाना भी नहीं है. आप कोई फॉर्मूला 1 ड्राइवर भी हैं तो उसके आउटस्टैंडिंग ड्राइविंग स्किल है, तो उनकी फिर वैल्यू क्रिएशन ज्यादा है और उसके कारण उनकी कमाई भी ज्यादा है. विराट कोहली का एग्जाम्पल हमने ये दे दिया है. कुकिंग में संजीव कपूर इज एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग कुकिंग स्किल्स है उसकी, तो इसलिए बहुत हाई वैल्यू क्रिएट कर रहा है संजीव कपूर. उसने उसको कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल से भी कंबाइन कर दिया, तो उसके पास कुकिंग स्किल्स भी एक्सीलेंट है और उसको प्रेजेंट भी अच्छे से कर रहा है. तो वो काफी लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है, काफी लोगों को कुकिंग सिखाता है वो. तो वैल्यू बहुत क्रिएट करता है, इसलिए उसके पास बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए हैं. एज सिंपल एज दैट. सो एक्सपर्टीज लेवल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट.
और ये देखिए, हाँ, एज वी नो एक्सपर्ट लेवल में भी ये बहुत सारे लेवल रहते हैं। कोई बिगनर है तो उसका 0 वैल्यू क्रिएशन रहेगा। जैसे कोई बिगनर कुक है तो वो आपके लिए क्या खाना बनाएगा, वो तो रॉ मटेरियल वेस्ट कर देगा। कोई मास्टर कुक है संजीव कपूर जैसा, तो बहुत अच्छा खाना बना के देगा आपको, तो उसकी इनकम भी वैसे रहेगी ना, आपको उसको वैसा पे भी करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने इस प्रीवियस ग्राफ में भी देखा था इन द प्रीवियस सेशन कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इन द एक्सपर्टीज लेवल एंड द रिवॉर्ड। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे आउटस्टैंडिंग रिवॉर्ड होते हैं, एक्सीलेंट पे वेरी गुड होते हैं, वेरी गुड पे गुड रिवॉर्ड होते हैं, दैट वी नो। और पुअर पे क्या होते हैं, पुअर एक्सपर्टीज लेवल पे क्या रिवॉर्ड मिलते हैं? यस गाइस, प्लीज पार्टिसिपेट। किसी को भी नहीं पता? नो रिवॉर्ड्स, यस, 0 रिवॉर्ड्स। ओके, चलो फिर नाउ नेक्स्ट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एटीट्यूड से भी वैल्यू क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक होटल में गए, वहां पे 2 वेटर हैं, एक बहुत प्लेजेंट तरीके से सर्व करता है, आपने आईसीएस में मसाला डोसा बोला, एक वेटर ने बहुत ही स्माइल करके आपको प्यार से खाना खिलाया, दूसरे ने आपको ऐसी ओके, एम आई कनेक्टेड, एम आई कनेक्टेड ऑन द नेट, आर यू एबल टू हियर मी? क्योंकि मुझे तो कुछ वो आ रहा था। ओके, थैंक यू, फाइन। हाँ, तो आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ आईसीएस में एक वेटर है जिसने आपको बहुत ही प्यार से मसाला डोसा पेश किया, और दूसरे वेटर ने ऐसे धड़ाम से पटक दिया सेम मसाला डोसा। तो उसके उस एटीट्यूड के कारण ही बहुत वैल्यू क्रिएशन में डिफरेंस आ जाएगा ना। पहले वाले को आप मसाला डोसा खाने में आपको मजा आएगा, यू विल फील मोर प्लेजर। दूसरे वाले को आप बोलेगा कि इतनी इंसल्ट वाला हमें चाहिए ही नहीं, यू विल गेट एंग्री। तो एटीट्यूड से देखिए कितना अंतर आ जाता है, दो द मसाला डोसा है सेम, ठीक है, एटीट्यूड का एग्जाम्पल हो गया। नाउ एफर्ट। हाँ, तो देखिए एफर्ट भी जरूरी है, और यहाँ पे मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहता हूँ, क्विकली आप लोग बताइए कि स्मार्ट वर्क जरूरी है या हार्ड वर्क जरूरी है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मिक्स ऑफ बोथ? ओके, ग्रेट। और एक्चुअली देखिए आज का सेशन आप लोग 10 तक अटेंड करिए, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, काफी वैल्यू क्रिएटिंग रहेगा आप लोगों के लिए। तो 10 तक आप लोग अटेंड करिए ना, आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है? तो प्लीज स्टे टिल द एंड। राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, फाइन। सो अभी हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए। तो देखिए हर चीज में हमें एफर्ट तो लगता है, लोग बोलते भी देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, वो एक्चुअली वो सैकड़ों साल पुरानी बात थी। अभी के बाद मैं ये बोलूंगा देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर वैल्यू क्रिएशन। यदि आप हार्ड वर्क कम भी कर रहे हो लेकिन आप वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो, जैसे मुकेश अंबानी बहुत कम एफर्ट में बहुत हाई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत पैसा आ रहा है। और जैसे मेरा कार वॉश करने वाला है, उसको एक बार कार वॉश करने के 20 या 25 रुपीज ही मिलते हैं, बोलता भी सर इतनी मेहनत करने के बाद 20-25 रुपए मिलते हैं, जो कि आज बच्चा भी नहीं लेगा। सिंपल, क्योंकि उसकी वो वैल्यू उतनी क्रिएट नहीं कर रहा ना, उसकी जो स्किल है बहुत ही लो लेवल स्किल है, जो कि कोई भी कर सकता है, इज इजी टू रिप्लेस। और कार वॉशिंग क्या है, एक दिन में इंसान सीख सकता है। तो हाँ, बट एफर्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। जैसे कोई प्लास्टिक सर्जन है, वो एक ऑपरेशन करेगा तो उसको सपोज 1 लाख मिल गया, तो 2 ऑपरेशन करेगा, डबल एफर्ट लगाएगा तो 2 लाख मिल जाएगा। तो एफर्ट के रेशियो में आपको वैल्यू क्रिएशन भी बढ़ जाता है। यदि मेरे कार वॉशिंग वाले ने 1 कार वॉश की तो 20-25 रुपए मिल गए, 20 कार वॉश की तो 500 रुपए मिल गए। तो एफर्ट के प्रोपोर्शन में हमारा वैल्यू क्रिएशन बढ़ता है। फाइन, नाउ रिस्क टेकन। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने ज्यादा लोग रिस्क लेते हैं उसके हिसाब से भी वैल्यू क्रिएशन बढ़ता है। एग्जाम्पल है जैसे कि वो पेंटर है, एक पेंटर बाहर से बिल्डिंग को बाहर से लटक के पेंट कर रहा है, बाहर से लटका हुआ बिल्डिंग पे पेंट कर रहा है। दूसरा पेंटर बिल्डिंग के अंदर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे रूम में अंदर आके पेंट कर रहा है। तो किस पेंटर की सैलरी या इनकम ज्यादा रहेगी, ए और बी? ए क्या कर रहा है कि बाहर से लटक के कर रहा है, दूसरा अंदर के रूम में आराम से पेंटिंग कर रहा है। किसका रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा?
राइट, हमारी सेशन सही बोला। यस ऑफ कोर्स ये करेगा, तो रिस्क टेकन से भी वैल्यू क्रिएशन बढ़ता है। हालांकि रिस्क कभी कभी बैकफायर भी हो सकता है और इसीलिए तो उसका रिवॉर्ड ज्यादा रहता है ना रिस्क का। ठीक है, इसके वैसे बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, बट एनीवेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। So fine, so these are the 5 elements of value creation and this is my claim to you कि ये फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं है और ये फॉर्मूला आपकी लाइफ में हमेशा जीपीएस का काम देगा। डियर फ्रेंड्स, डियर जूनियर्स, डियर माय मैनेड पीपल, देखिए जब भी आपको वैल्यू, आपको पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है और ये आपको ईमानदारी से पैसा कमाना सिखा रहा है। इस तरीके से आप करिए, अपने स्किल सेट बढ़ाइए, उसमें एक्सपर्टीज लेवल बढ़ाते रहिए, एटीट्यूड अच्छा रखिए, एफर्ट लगाइए, थोड़ा रिस्क भी लीजिए। जैसे विराट कोहली भी रिस्क लेता है ना, जैसे करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं, वो मैच खेल रहा है, अभी 0 पे आउट हो गया तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी और यदि पाकिस्तान के खिलाफ उसने सेंचुरी लगा दी तो सुपरस्टार बन जाएगा। तो वो रिस्क लेता है ना, तो इसलिए उसकी कीमत भी बहुत है ना, सैकड़ों करोड़ रुपया है उसके पास, विराट कोहली के पास। तो दैट इज एन एग्जाम्पल। अंबानी जी ने भी जियो लॉन्च किया, उन्होंने 150 करोड़ 150 लाख करोड़ लगा दी उन्होंने, काफी ह्यूज अमाउंट लगाया उन्होंने, काफी बड़ी रिस्क ली और उनका जियो सक्सेसफुल हो गया तो काफी वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, करोड़ों लोग जियो यूज कर रहे हैं और उनके पास बहुत अरबों खरबों में उससे प्रॉफिट भी आ रहा है। राइट, और देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ, जब आपकी स्किल सेट कम होती है, एक्सपर्टीज लेवल कम होती है, तब आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। जैसे कि यदि अनुज सपोज पाइथन सीख रहा है शुरू में, मुझे अभी उसका एक्सपर्टीज लेवल पता नहीं है पाइथन में कितना होगा, लेकिन जब वो शुरू में सीख रहा था तो बहुत एफर्ट लगा रहा था और उसकी आउटपुट कम आ रहा था। इज इट राइट अनुज? अनुज कैन यू प्लीज कंफर्म ऑन दिस? मतलब आप पाइथन सीखने में आप एफर्ट ज्यादा लगा रहे थे और आपको आउटपुट कम आ रहा था, राइट? ही इज एग्रीड। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जब उसने एफर्ट लगाता गया तो क्या होगा, उसका स्किल सेट, एक्सपर्टीज लेवल में मेनली उसका बढ़ता गया, बाद में वो कम एफर्ट में भी ज्यादा आउटपुट दे सकता है। तो जब आप नए होते हो किसी भी चीज में फ्रेंड्स, जब आप कॉर्पोरेट में भी जाओगे, जब आप नए रहोगे तो आपको उस स्किल में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और ज्यादा, देखिए आप ज्यादा एफर्ट लगा के कम वैल्यू क्रिएट करोगे। लेकिन जब आप वो एफर्ट लगाते रहोगे तो क्या होगा, आपकी एक्सपर्टीज लेवल बढ़ती जाएगी और फिर आप कम एफर्ट में भी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे और इसलिए आप कम एफर्ट में ज्यादा पैसा कमाओगे। एज सिंपल एज दैट। So it's a very enlightening formula. So if you feel it is enlightening, just write E in the chat box, please. Okay. So Jay Amarias, Shabi, yes guys. Okay, great guys. बाकी लोगों को एनलाइटिंग नहीं लग रहा है क्या? चार लोगों ने ये लिखा है। अनुज आपको नहीं लग रहा है? ओके, आदित्य को भी लग रहा है। ग्रेट। और ये फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं है, राइट? ओके, थैंक यू गाइस फॉर द पार्टिसिपेशन। राइट, सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ, और देखिए एटर्नल फैक्ट ऑफ अवर बिजनेस वर्ल्ड है, जो कि टाइमलेस है, यूनिवर्सल है, या हिंदी में जिसको हम बोलेंगे शाश्वत, काल निरपेक्ष, विश्वव्यापी, उसको बोलते हैं शाश्वत, एटर्नल, टाइमलेस, यूनिवर्सल। यदि आपके पास वैल्यू है तो आप मनी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज ए बायर। और आपके पास पैसा है तो आप वैल्यू ले सकते हो, प्रोवाइडेड देयर इज अ सेलर। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग वैल्यू प्रोवाइडर हैं टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, टू द बिजनेस वर्ल्ड। तो जितनी ज्यादा आप वैल्यू क्रिएट करोगे, you will get money in the same proportion. Yes or no, guys? Please write in the chat box yes or no. Okay, thanks for the confirmation, Amarish, Sujay. Right, now let's move to the next slide. So actually these are not the 5 elements of value creation, but these are the 5 elements of what? These are not only the 5 elements of
value creation. These are the 5 elements of what else. Please write in the chat box. Let's see who is giving the correct answer first. Successful business. Yes, Aditya has told this correctly. Because value creation equal to wealth creation. So these are also the 5 elements of wealth creation. Here it is. और देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि द डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यदि आपका सोर्स पे डायरेक्शन सही है देन यू विल बी इन द राइट डायरेक्शन। जैसे देखिए अभी आप लोग क्या है कि कॉर्पोरेट में आपकी एंट्री होने वाली है और आपको एंट्री के पहले ही सही डायरेक्शन मिल गया, पूरा डायरेक्शन आपको मिल गया कि आपका काम है हर दिन वैल्यू क्रिएट करना, और हर दिन आपका स्किल सेट आपको बढ़ाना है, एक्सपर्टीज लेवल बढ़ाना है, और अपनी कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, उसके कस्टमर्स के लिए आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, इवन अपने कलीग्स के लिए, अपने सीनियर के लिए, अपने बॉस के लिए, बॉस के बॉस के लिए, अपने एंड कस्टमर के लिए आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, आपको स्किल सेट बढ़ाना है, एक्सपर्टीज लेवल बढ़ाना है, एटीट्यूड अच्छा रखना है, एफर्ट लगाना है, तो इससे आपका इनकम प्रमोशन होते रहेंगे। योर एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशिएंट विल बी द हाईएस्ट। जैसे कि चेस में भी रेटिंग होती है ना, कोई 2000 रेटिंग के प्लेयर होते हैं, कोई 2500 वाले भी होते हैं, विश्वनाथन आनंद, कार्लसन, ये सब 2800 के ऊपर है, अभी हमारा गोकेश भी 2800 के ऊपर हो गया है। तो यू विल प्ले लाइक ए कॉर्पोरेट ग्रैंड मास्टर। आईआईटी वालों को भी पता नहीं रहेगा ये बात कि कैसे ये कॉर्पोरेट का गेम खेलना है, सिंपल फंडा है ना। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कौन समराइज करना चाहेगा? अनुज आप समराइज करिए प्लीज, हाउ टू प्ले द गेम ऑफ कॉर्पोरेट लाइक ए ग्रैंड मास्टर। अनुज यू कैन अनम्यूट। अच्छा, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू समराइज? देखिए सीधी सी बात है, आपको हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट करना है हर दिन, आपको यू हैव टू क्रिएट द हाईएस्ट वैल्यू, वट एवर रोल इज, वट एवर ज्योग्राफी, वट एवर योर इंडस्ट्री इज। अब वैल्यू क्रिएट कैसे करना वो आपको फॉर्मूला सिंपल बता दिया गया, तो पूरा क्लियर कट डायरेक्शन है यार आपके पास तो एकदम, और कैरियर की शुरुआत से ही पता है। तो आप लोग कॉर्पोरेट रॉक स्टार बनोगे कि नहीं बनोगे? यस और नो फ्रेंड्स? इफ यू एग्री, ओके, अनुज इज टेलिंग यस। हाँ, मतलब इतना क्लियर कट फॉर्मूला है ना, इट्स एनलाइटनमेंट, इट्स टाइमलेस, यूनिवर्सल थिंग, एंड गेटिंग द डायरेक्शन एट द राइट टाइम। ऐसा डायरेक्शन मुझे अपने कैरियर के शुरुआत में होता तो आज मेरी नेटवर्थ है कम से कम 100 टाइम्स और ज्यादा होती है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो आपको ये प्रॉम्प्ट इंप्लीमेंट करना है ऑन द चैट जीपीटी। मैं आपको चैट चैट में दे रहा हूँ, और आपको एक लास्ट गूगल फॉर्म में फिलअप करना है। जस्ट इसमें आप फिल इन द ब्लैंक करिए, 3 फिल इन द ब्लैंक है, तो इसको करके आप करिए, एंड व्हेन यू आर डन देन राइट D2 इन द चैट बॉक्स। या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। तो सूर्य इंस्ट्रक्शंस क्लियर है ना आपको? यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है, तो करके इसको आप इम्प्लीमेंट करिए इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में, फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए तीनों, और 2 तो मेरे ख्याल से वो पहले ही वाले हैं आपके। हाँ, आपका जो आई एक्सपेक्ट परसेंटेज इंक्रीज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वैल्यू क्रिएशन फॉर्मूला, आपका वो परसेंटेज तो बढ़ ही जाएगा पक्का।
तो इनको फिलअप करिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए और गूगल फॉर्म में आंसर लिख दीजिए. दैट्स इट, वेरी सिंपल टास्क. And when you're done, write D2 in the chat box, please. Right, great, guys. ठीक है, जिन लोगों ने D2 कर दिया है, प्लीज सबमिट योर फॉर्म. केवल अभी तक 3 लोगों का D2 है. ठीक है, महिमा ने भी कर लिया, प्रिया ने भी कर लिया. ग्रेट गाइस, ग्रेट. ओके, 1 2 3 4 5 6, 5-6 लोगों ने किया अभी तक. ठीक है, टिल देन एनी क्वेश्चन फॉर मी? और योर कमेंट्स ऑन टुडेज सेशन. कैसा रहा आज का सेशन? जो मैंने क्लेम किया था वो प्रूव हुआ कि नहीं आज के सेशन में? इफ इट इज प्रूव्ड, जो मैंने क्लेम किया था ना कि 2 CR का कम से कम आपको बेनिफिट होगा इस सेशन से, मतलब क्लियर कट आपको डायरेक्शन मिल गया ना, एकदम एनलाइटनमेंट मिल गया. ओके, अरविंद ने भी किया. ठीक है गाइस, so your comments on today's session please. ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चन फॉर मी? हाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ. जब आप इंटरव्यू जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आपको पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है. क्वेश्चन पूछना भी आना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ गुड साइन. तो ठीक है, किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी एनी सिली क्वेश्चन आल्सो. कैसा रहा आज का सेशन फ्रेंड्स? Okay, Amarisha, today's session was awesome. Learned new insights of business. Anu is telling nice. Suggestion great. Yes guys, तो देखिए आज के सेशन की आप लर्निंग्स को हमेशा लाइफ में याद रखें. वैल्यू क्रिएशन का फॉर्मूला आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, सबसे बड़ा फ्रेंड है. ये आपको सारी लाइफ के लिए गाइडेंस देगा. ये आपको बताएगा कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो अपना एम्प्लॉयबिलिटी कोएफिशिएंट कैसे बढ़ाना, कैसे प्रमोशंस लेना, कैसे इंक्रीमेंट लेना. आप खुद की भी कंपनी खोलते हो तो उसको कैसे स्मूथली प्रॉफिटेबली चलाना. तो आपको काम बिजनेस वर्ल्ड में करना है, चाहे आप कोई भी रोल प्ले करो, किसी भी इंडस्ट्री में रहो, चाहे आप अमेरिका में काम करो, जापान में काम करो डियर फ्रेंड्स, या हमारे देश इंडिया में ही काम करो, किसी भी सिटी में काम करो, लेकिन ये फॉर्मूला आपके हमेशा काम में आएगा. एंड दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू. हमेशा यूजफुल चीज है ये, तो जस्ट यूज इट बिकॉज यू नो इट. इफ समथिंग इज नॉट यूज देन इट्स अ वेस्ट. आई एम श्योर आप लोग इसको वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? So fine, if there are no other questions, then we can close the meeting for today. So I think the objective was achieved on time. Right guys?